Hey guys, I welcome you back once again in my digital classroom. This is my digital classroom. I can also call virtual classroom where you can save your time, your money, and you will get better quality than the normal classroom. Student, here we have taken one sum, and that sum is from death of partner. This is the first sum only. Let's see the sum. I'll read it. This is student. This is sum number one from government textbook, right? Let's begin. Rajesh, Rakesh, and Mahesh were equal partner in on 31st March 2019. Their balance sheet was as follows: 31st March 2019 balance sheet as on etc. etc. These are assets and liabilities. You have to post same assets liabilities to the new balance sheet, student, right? This will be called as old balance sheet. Mr. Rajesh died on 30th June 2019, and the following adjustments were agreed as: furniture was to be adjusted to its market price. So there is adjustment of furniture. तो हम लोग क्या करेंगे? Furniture को will put a tick so that we can understand that there is an adjustment. Land and building too, there is adjustment. Then debtors. So we are having adjustment on these items. Just put a tick so that uh, will remember. Then this is the extra adjustment you will be having in every sum of death of partner. Rest all the sum is same as retirement of partner, that is also सेम एज एडमिशन ऑफ पार्टनर. तो जैसे एडजस्टमेंट्स आपको एडमिशन में थे, रिटायरमेंट में थे, यहाँ पर भी सेम एडजस्टमेंट यू विल बी हैविंग एक्सेप्ट दिस फोर्थ वन. सो ये फोर्थ वन का भी एडजस्टमेंट आप ये सब में समझ लो सो दैट बाकी के सम में आपको प्रॉब्लम न आए, सिंस दिस इज द फर्स्ट सम, राइट? सेम टाइप का एडजस्टमेंट यू विल बी हैविंग. ये एक एडजस्टमेंट रहेगा और एक गुडविल का रहेगा. दैट इज ओनली द डिफरेंस. बस ये टू डिफरेंसेस हैं, एक ये और एक गुडविल वाला सम्स है. The profit up to the death of Mr. Rajesh is to be calculated on the basis of last year profit, which was rupees 1,80,000. स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1,80,000 था. इसमें से जो पार्टनर का डेथ हो गया उसका शेयर कैलकुलेट करके उसे देना है, राइट? अब उसका ट्रीटमेंट क्या आएगा, कैसे आएगा, विल सी. लेट्स बिगिन. I have already made ready the columns what we need to prepare. Right here you can see on your mobile screen. I hope everything will be visible to you all. I conduct virtual classroom in this way only और एकदम fast भी हो जाएगा. See, here first you will be writing in the books of partnership firm, then we will be preparing profit loss adjustment account in the same format what you can see. Then we need to have partners capital account in the same format what you can see, and finally balance sheet as usual. Student, you just look at the date. It is balance sheet as on 1st July 2019. क्यों? देखो डेथ कभी हुआ 30 जून को, तो 30 जून के बाद जो फर्म रहेगा ना वो न्यू फर्म रहेगा. इसलिए यहाँ पे देखो डेट आया है 1st जुलाई 2019. दैट इज दिस इज द बैलेंस शीट आफ्टर द डेथ ऑफ राजेश. तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट द सम. राजेश राजेश राकेश महेश का एक कैपिटल है. पुट इट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सी इन दिस वे आई एम डूइंग इट. जस्ट वॉच. बैलेंस क्या लिखेंगे? ब्रॉड डाउन लिखेंगे, कैरी डाउन लिखेंगे? ब्रॉड डाउन लिखेंगे, राइट? 5 lakhs, 2 lakhs, again 2 lakhs. Done. Next, sundry creditor 19,000. एडजस्ट में नहीं है, put it in order column. 9 sundry creditors 19,000. Next is bills payable 60,000. Then
We are having bank loan 1,50,000. Okay, liability is over. Asset side. Land and building inner column. This amount no, you'll be writing in inner column. Land and building 4 lakhs, furniture 3 lakhs. Okay. Land and building 4 lakh, furniture 3 lakhs. Debtors 3 lakhs, stock 1 lakh. Outer column because there is no adjustment on remaining items. Cash 1 lakh. Now adjustments, every adjustment should have two effects. Furniture was to be adjusted at market to its market price 3,40,000. Furniture 3,40,000 will be recorded in outer column see in this way. जो adjustment का amount है ना बेटा वो outer column में लिखना चाहिए in this way. Because the students confuse हो जाते हैं कि कौन सा amount लिखने का outer column में. Now see the difference. Difference is of rupees 40,000. Now ये increase हुआ है decrease हुआ है. जो new amount है ना वो increased हो गया है या decreased हो गया है? Increased हो गया है. So for that he will be writing add appreciation. 40,000 appreciate हुआ that is good to the business. And whatever is good to the business will be recorded on which side? क्रेडिट साइड. क्यों? क्योंकि डेबिट में तो हम लोग सारे लॉस रिकॉर्ड करते हैं ना, इसलिए. नेक्स्ट एडजस्टमेंट. फर्स्ट के तो टू इफेक्ट्स हो गए हैं. लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. सो हियर इज द लैंड एंड बिल्डिंग. डेप्रिशिएट मींस लेस. हियर विल राइट depreciation. Okay, depreciation 10% है. So again 10% will be 40,000 and we'll be getting how much? 3,60,000. This is lost to us. Will be recorded in debit side to land and building. $40,000 लॉस. ओके, तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग का लिख दिया डेबिट में, लॉस है. फर्नीचर का क्रेडिट में आ गया. यस. नेक्स्ट एडजस्टमेंट के भी टू इफेक्ट्स देने हैं. दिस इज आरडीडी 5%. लेट्स कैलकुलेट. लेस आरडीडी how much? 5%. So how to calculate? Into 5 upon 100, right? 15,000. So we'll write here कितना आएगा? 3 lakhs minus 15,000 will be 2,85,000. This 15,000 is loss and accordingly it will go to debit side of profit or loss adjustment account and the amount will be 15,000. Now for this last adjustment, ठीक है, this is the whole year's profit. हाँ, तो इसको हमको वर्किंग नोट चाहिए रहेगा. प्रॉफिट शेयर ऑफ शेयर इन प्रॉफिट. हाँ, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे?
देखो 1,80,000 इंटू, अब डेथ कितने महीने बाद हुआ, ईयर बिगिन होने के कितने महीने बाद हुआ, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये देखो ये तो एंड हो गया ना 31 मार्च 2019, ये एंड हो गया, बिगिन कभी होगा 1 अप्रैल 2019। चलो मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट डेट बताता हूँ। हाँ, अप्रैल, अप्रैल का होल मंथ ले लो, देन मई, देन जुलाई, देन अगस्त, अच्छा अप्रैल, मई, जून, जून राइट, 30 जून को उसका डेथ हो गया है, तो कितने महीने बाद उसका डेथ हो गया, 3 मंथ्स, तो यहाँ पे 3/12 होगा, राइट। 3/12 करने के बाद वापस से इनटू, क्यों, आप 3/12 करेंगे तो सिर्फ ये 3 मंथ्स का आ जाएगा, 3 मंथ्स का, पूरे 3 पार्टनर्स का। अभी हम लोग ने राजेश का शेयर इसमें से निकाला, कितने कहाँ पर है, नहीं निकाला है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है ना। अब हम लोग राजेश का शेयर निकालेंगे 1/3, तो राजेश का शेयर आ जाएगा। आप नहीं समझो, वापस से मैं समझाता हूँ, देखो ये 1,80,000 पूरा होल ईयर का प्रॉफिट है, उसमें से हमको सिर्फ 3 मंथ्स का प्रॉफिट चाहिए, राइट। 3 मंथ्स का, चलो मैं आपको यहीं पे कैलकुलेट करके मैं आपको बता देता हूँ। ओके, 3 मंथ्स का प्रॉफिट आ गया। अभी ये जो प्रॉफिट है ना, ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है फॉर 3 मंथ्स, ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट है। अब इसमें हमको न्यू पार्टनर का शेयर चाहिए, 45,000 इंटू न्यू पार्टनर का शेयर कितना, 1/3, राइट, 15,000। अब ये न्यू पार्टनर का शेयर है, शेयर ऑफ सॉरी डेड पार्टनर का, 15,000। अभी 15,000 हम लोग उसको दे देंगे कैसे, देखो ये न्यू एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, सो बी अटेंटिव, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखने का। हाँ, कौन डेट हो गया है, राजेश, फर्स्ट पार्टनर, 15,000 दे दो। सेकेंड इफेक्ट, यहाँ पर क्रेडिट में है तो सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड में, वहां पर आप सेम लिखेंगे यही जो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, 15,000। Getting student, this is a new adjustment what will be having in all the sums, ठीक है, ओके ना। अभी देखो अभी कुछ भी नहीं रह गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सब क्लोज करेंगे अकाउंट। यहाँ पे टोटल ऑफ दिस साइड इज 55,000 विच इज द हायर साइड, सो 55,000 will be recorded on both the side, तो यहाँ पर आ जाएगा 55,000 माइनस 40,000, ओके। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे महेश, राकेश, राजेश बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। This will be divided equally among this partner, 15,000 into 1/3, so 55,000 आ जाएगा सबको। Accordingly, second effect will go to the credit side
No, debit side, because these are in credit side, no, so second effect will go to debit side. Here we'll write to profit and loss adjustment account. Now total of this side, it will be 5,15,000 and 2 lakh. Now same amount I want here. Okay, now we'll check the balance. फर्स्ट जो पार्टनर का डेथ हुआ है उसका बैलेंस कैलकुलेट करेंगे. इट विल बी 5,10,000 and here 1,95,000 here too. ठीक है, वी हैव गॉट द बैलेंस. बट ये जो कंटिन्यू पार्टनर है ना उसका बैलेंस आ गया हमको, बट वो हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इन दिस वे. बता दो क्यों. देखो, इसका जो बैलेंस है ना दैट विल गो टू राजेश एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. एग्जीक्यूटर मीन्स अभी राजेश का तो डेथ हो गया है, बट उसके जगह पर जो दूसरा पर्सन रहेगा, जो भी नॉमिनी रहेगा, द पर्सन हुएर विल बी एंटाइटल्ड, हाँ, वो ये पैसा उसको मिलेगा. अब इसको हम लोग डालेंगे लायबिलिटी में. जब तक ये पैसे पे नहीं हो जाते हैं तब तक ये पैसे बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी रहेगा. ये अमाउंट है 5,10,000. इसको और नीचे ले लो. अभी ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ना अदर पार्टनर का, दैट विल बी बैलेंस कैरीड डाउन. हाँ, तो वो यहाँ पर आ जाएगा. सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राजेश राकेश महेश. राजेश तो नहीं आएगा. राजेश का तो डेथ हो गया और वो निकल भी गया है. राकेश महेश 1,95,000. सेम है स्टूडेंट, जैसे हम लोग एडमिशन रिटायर में करते थे ना, सेम है. टोटल ऑफ दिस विल बी टेकन इन आउटर कॉलम 3,90,000. ओके, नाउ अभी हम लोग बैलेंस शीट टैली करेंगे. टोटल ऑफ दिस साइड इज 11,29,000 and this side total is 12 lakhs. So now where is the problem? We have to check it out. ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है हमारा. ये 3 आइटम्स को हम लोग चेक कर लेते हैं. सन्ड्री क्रेडिटर, हाँ सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पे 90,000 है. ओके, यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ है. अब देखते हैं हम लोग. यस, अब करेक्ट आ रहा है. दिस साइड भी इतनी आ रहा है 12 लाख. So guys, in this way we have
solved डेथ ऑफ पार्टनर, दिस इज द फर्स्ट सम। सारे सम्स में सेम यही टाइप के एडजस्टमेंट रहेंगे, राइट? सो इन दिस वे आई विल वाइंड अप माय क्लास। थैंक यू वेरी मच।